Okay. Good morning, everyone. Welcome to Daily News Analysis by Tathastu ICS. So, for 28th July 2026, we are going to see certain topics. Take a good morning, Rashmi. Good morning, Bhushan. Good morning, Gujari, and good morning, Maya. Good morning, Sandesh. So, a warm welcome and warm good morning to everybody. ठीक है. So, hope you got the PDF yesterday का PDF मैंने वो Telegram channel में डाल दिया है. एक बार check कर लेना and I'll make sure कल का PDF वो उसी वीडियो के नीचे ही अटैच हो जाएंगे आज. ठीक है. एंड आज का पीडीएफ आपको शाम तक मिल जाएंगे. ठीक है. वो पीडीएफ लेने के लिए यू हैव टू स्कैन दिस क्यूआर कोड एंड यू हैव टू जॉइन द टेलीग्राम चैनल. फ्रॉम देयर यू कैन टेक ऑल दोस पीडीएफ्स. ठीक है. चलिए. सो आज हम देखने वाले हैं सर्टेन टॉपिक्स. ठीक है. सो 4 टॉपिक्स मैंने आपके लिए लेके आए हैं. मेरी आवाज तो आ रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है. So the first one is about the cleaner mobility. So this editorial is talking about right now. Okay, good morning, Arvind. So what we are going to talk about here is, ठीक है. So इंडिया में अभी नया नॉर्म्स आए हैं. इस बार इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है, कॉर्पोरेट्स के लिए आया है. ठीक है. सो दैट वी आर गोइंग टू सी व्हाट इट इज. ठीक है. सो क्लीनर मोबिलिटी में इंडिया क्या चाह रहा है, इनका एम्बिशंस क्या है, इंडिया का एम्बिशंस क्या है, एंड व्हाट आर ऑल द हर्डल्स दैट वी हैव, चैलेंजेस क्या क्या है, वो हमने देखने वाले हैं. ठीक है. So this will be directly impacting in our GS3 paper. ठीक है. Good morning Jatin. Good morning gaming. Sorry. Good morning Deepak. ठीक है. So this will be impacting in our GS3 paper. ओके. सो हमारी क्लीनर एनर्जी एम्बिशन क्या है, उसके लिए हम क्या क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ. ठीक है. एंड द सेकेंड वन इज अबाउट एआई इन इनफॉर्मल विमेन वर्कर. सो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है. सो रिसेंटली आईएलओ का एक रिपोर्ट आया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से. सो इंडियन विमेन में 82% दे हैव बीन एंगेज्ड इन इनफॉर्मल वर्क ओनली. राइट. मैम फेज नहीं आ रहा है. कोई बात नहीं बेटा दीपक. इट इज ओके. if you're able to listen and if you're able to see the PDF, that is more than enough. ठीक है. हमारी आइडिया ये है पढ़ना का. राइट. सो वो डिलीवर हो रहा है तो दैट इज वेल एंड गुड. ठीक है. एंड इफ कंप्लीटली आपको ये पीडीएफ भी नहीं दिख रहा है तो प्लीज लेट मी नो, आई विल मेक श्योर. ठीक है. गुड मॉर्निंग तान्या. वेलकम. थैंक यू. थैंक यू. ठीक है. चलिए. सो अब भी एआई एंड इनफॉर्मल विमेन वर्कर में हम क्या देखने वाले हैं. As I have told you, ILO से एक रिपोर्ट आया है. वहां पर हमारी मेजर ऑफ द विमेन वर्कफोर्स इज एम्प्लॉयड इन whom the ये हो जाएगा. जी. होप माय वॉइस इज क्लियर राइट नाउ. राइट. कैन एनीबडी कंफर्म इट फॉर मी प्लीज. मेरी आवाज आ रही है बेटा?
ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए, सो where were we? The second one is about AI and informal women worker, right? So ILO में 2018 का रिपोर्ट आया है जहां पर इंडिया के ओके वर्किंग क्लास में women are 82% of the women are engaged in what? The informal sector. So this editorial is basically like क्या हमें वो AI को यूज करके ये women employers को हमें इंक्लूसिविटी लेके जा सकते हैं, राइट? ओके, और इसके अलावा what and all we can be doing, what and all we can do when it comes to the AI. Already we are using it in a much way better in the other sections as well, like healthcare, right, education, and many other areas we are using the AI. So right now we are stepping into the another section where women, especially who are working in the like informal work, okay, where it is mostly into the domestic work or agriculture work, can we include that people also in the usage of AI, so that their problems, and they will be having the market access, and they will be having the tool access as well. So that we are going to see in this editorial, okay? So this will be impacting us in two ways, okay? Majorly this we are going to see in the society one when it comes to women, okay, because women are being employed, but the problem here is they are not coming under the properly salaried, and they are not coming under the proper formal work. Instead women are more engaged in the caregiving works and also the informal work, ठीक है? So state of women के लिए हम GS1 में हम यूज कर सकते हैं, और दूसरा AI का एक्सटेंडेड वर्जन कहाँ कहाँ इंडिया में यूज होते जा रहे हैं. So that also we can use it essay papers में, we can use this quote, okay, and along with that we can use the GS3 पेपर ऑल्सो AI का कंपाइलेशन वो भी हमें दिखा सकते हैं, ठीक है? गुड मॉर्निंग राम। चलिए, so this will be clearly identified in GS1 पेपर एंड ऑल्सो ऐसे पेपर्स में थोड़ा बहुत हमें यूज कर सकते हैं, ठीक है? थर्ड वन इज अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है? सो हियर व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज, ओके, एंटी डिफेक्शन लॉ को हमें बहुत बार पढ़ लिया है, बट स्टिल एक रिविजन हम कर लेते हैं, ठीक है? एंटी डिफेक्शन लॉ इंडिया में कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है? अभी सुप्रीम कोर्ट में भी एक क्वेश्चन अरोज हो गया है अबाउट द मर्जर, मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ में एक लूप होल है, ठीक है, वो मर्जर वाली. सो उसके ऊपर इन्होंने क्वेश्चन उठाए हैं, बट नथिंग मच इन द आर्टिकल, बट वी आर गोइंग टू हैव अ जस्ट रिविजन अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है? एज वी हैव रेड इट मल्टीपल टाइम्स, आई वांट योर आंसर्स एज वेल. बीच में जब मैं क्वेश्चंस पूछेंगे चुपचाप नहीं होना चाहिए, ठीक है? यू हैव टू आंसर फॉर दोस क्वेश्चन, ठीक है? देन द फोर्थ वन इज अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट, जहां पर इंडिया में दिस आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट इंडिया में जीडीपी ग्रोथ अच्छा है, चल रहा है, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं, बट व्हेन वी लुक इनटू द एक्चुअल प्रॉब्लम, एम्प्लॉयमेंट हमारी वो जीडीपी के साथ साथ कोरिलेट हो रहा है, एंड जितना हमारे जीडीपी बढ़ रहे हैं, जितना हमारी जीडीपी बेटर होते जा रहा है, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो एम्प्लॉयमेंट में इंडिया में ठीक है, जॉब सिक्योरिटी सबके लिए है कि नहीं, उसी बारे में. एंड व्हाट इज अ कोर इशू व्हाई इंडिया में इतना बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट है, और इसके अलावा इंडिया को अभी क्या करना पड़ेगा वो अनएम्प्लॉयमेंट को थोड़ा सा कम करने का. इट कैन नॉट बी done in one day, right? Rome cannot be built in a one day. So the same wise unemployment और poverty और जो भी चीज है, ठीक है, बड़ा बड़ा चीज है, so fragmented है, okay, the serious issues cannot be done in one day, but the major thing is like we have to focus on धीरे धीरे एक एक स्टेप करके हमें ये सीरियस प्रॉब्लम्स को कैसे हम चेंज कर सकते हैं. इसी एडिटोरियल में दे हैव टॉक्ड अबाउट चाइनाज रिलेवेंसेस एज वेल, वी आर गोइंग टू सी इन दैट केस, ठीक है? क्लियर टिल नाउ? सो ये टॉपिक्स है, क्या क्या पढ़ने वाले हैं और कहाँ ये इम्पैक्ट हो जाएंगे. सो ये एम्प्लॉयमेंट के बारे में हम GS1 में पढ़ेंगे, क्योंकि यूथ के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, पॉवर्टी वगैरह, राइट, सोशल जस्टिस में भी ये हमारे यूज आ जाएंगे, राइट? सो GS1 एंड GS2 व्हेन इट कम्स टू दीज थिंग्स इट विल बी यूजफुल फॉर अस, ठीक है? क्लियर? If there is any doubt, and unemployment है तो GS3 में भी हमें काम आ जाएंगे, राइट? सो इंडिया का वो इंफ्रास्ट्रक्चर नंबर 4 में इशू है. नंबर 4 में क्या इशू है जी? अनएम्प्लॉयमेंट तो है. नंबर 4 में इशू क्या है ये बता दीजिए, ठीक है? सो दिस इज व्हाट द थिंग दैट वी आर गोइंग टू टॉक टुडे, ठीक है? चलिए, सो लेट्स गो to the editorial clearly, ठीक है? चलिए, so the first one here we are going to talk about is, let me change the color, I think this will be visible for everyone, right?
चलिए, गुड मॉर्निंग गणेश जी। सो बियॉन्ड कंपाइलेंस इंडियाज रोड टू क्लीनर मोबिलिटी। सो इंडिया का एम्बिशन अगर आप देखेंगे तो, ठीक है, सो वी आर मोर इनटू क्लीनर एनर्जी मोबिलिटी, राइट। सो इसके वजह ये द थिंग्स इंडिया इज राइट नाउ गोइंग ऑन विद ऑल द FTAs एंड विद ऑल द पार्टनरशिप्स एंड द ट्रेड एग्रीमेंट्स। दैट इज मेन इशू इंडिया। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, ओके, माय बैड, आई रेड इट वेरी रॉन्ग। मैं हिंदी समझ के उसको पढ़ा था, बट आई एम रियली सॉरी दैट यू मेंशन्ड इट इन इंग्लिश, बट सॉरी। ठीक है, चलिए। सो इंडिया में, ठीक है, सो इंडिया is going on with n number of FTAs and we are going with multiple diversification and everything. हर जहां से एक चीज कॉमन हमें मिल जाता है, याद है। सो जो क्रिटिकल मिनरल्स, ओके, और इसके अलावा रेयर अर्थ मटेरियल्स हम खरीदने के लिए और इसको परचेज करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, राइट। सो वी आर फोकसिंग ऑन दैट। सो व्हाट इज द नीड ऑफ बाइंग ऑल दोस क्रिटिकल मिनरल्स एंड आल्सो द रेयर अर्थ मटेरियल्स? It is because India's ambition to move towards cleaner energy, ठीक है। It is not only for India's growth, ठीक है, there are certain reasons why India is going for these kind of raw materials and the critical minerals purchase, ठीक है। First thing, India wants to move to cleaner energy because इनका oil dependencies ज़्यादा है, right? So major of the imports, okay, the major of the forex that goes out from India is for the crude oil purchase only, clear, ठीक है। So the 80% of the import of oil that is getting more and more burdensome for India. So what India is trying to do, India is trying to reduce the renewable based non-renewable based energy, and we are moving towards cleaner and renewable sources of energy. So that's why we are trying to build nuclear reactors, so that we will be getting electricity from nuclear reactors for domestic purpose, and also for EV vehicles and everything we are buying those critical minerals, because for EV batteries nickel, cobalt, like this kind of critical material minerals are very much needed, okay. So that's why we are moving towards cheaper, and that's why we are moving towards like FTAs, basically having those critical minerals trade, ठीक है। सो अभी आपको समझ आया है इंडिया में क्रिटिकल मिनरल्स का जरूरत क्यों है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन भी होना है। लॉन्ग टर्म में हमें देखेंगे तो द एमिशन हैज टू बी रिड्यूस्ड अल्टीमेटली इन इंडिया, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ता है इंडिया में, राइट। सो पोल्यूशन कंट्रोल एंड अलोंग विद दैट फॉर द लॉन्ग टर्म रिलायबल एनर्जी के लिए, और इसके अलावा वी आर मूविंग टूवर्ड्स द स्ट्रेंथेंड इकोनॉमी वेयर द करंट अकाउंट डेफिसिट विल बी like curtailed when we are reducing the oil imports, ठीक है। so these are the things, environmental, climate, and also this Indian economy, economical things are the major thing why India wants to move to cleaner energy. And apart from that, ये सारा नेशनल इंटरेस्ट है। apart from that, what is one reason, because इंडिया ने प्रॉमिस किया था अपना एमिशन और एमिशन को कम करेंगे, और इसके अलावा क्लीनर एनर्जी पे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, ये ग्लोबल स्टेज में इंडिया ने प्रॉमिस भी किया है। So this is what happening around us, right? So this editorial is talking about cafe, ठीक है, cafe के कैसे भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। So corporate average fuel efficiency, so this is what called cafe, ठीक है। सो अर्लियर इंडियन गवर्नमेंट में क्या क्या किया इन्होंने, वो पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए पोल्यूशन सर्टिफिकेट देख रहा था, सर्टेन टाइप ऑफ सर्टेन मॉडल ऑफ व्हीकल्स, बी इट फोर व्हीलर, हेवी, everyone knows this is the highest pollution occurs in India. Yes beta, yes right, ठीक है। सो इंडिविजुअल बेसिस में इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा काम किया है, राइट, पोल्यूशन सर्टिफिकेट्स के बारे में, एंड सर्टेन मॉडल ऑफ बाइक्स और सर्टेन मॉडल ऑफ व्हीकल्स हैव नॉट बीन अलाउड आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम। BS6 के बारे में हमें पता है, राइट। सो दीज आर गोइंग ऑन ए इंडिविजुअल लेवल। सो मान लो अगर जस्ट इमेजिन इफ आई एम गोइंग टू परचेज एनी बाइक और एनी फोर व्हीलर, ओके, और एनी ट्रक दैट इज अवेलेबल इन मार्केट, so I will go and buy that only, right? So this cafe is focusing on the corporate level where the manufacturers have to be transforming their technology, ठीक है। so it is somewhere or the other, the tech manufacturers, if they bring, okay, fuel efficient
एंड ऑल्सो मोर ऑफ अ, मैम पेन कलर चेंज कर देगा नहीं यार, ठीक है, पेन कलर कौन सी कलर यूज करूं, येलो विल वर्क, येलो दिख रहा है आप लोगों को, थैंक यू राहुल, बट ठीक है देख लेते कोई दिक्कत नहीं, पेन कलर येलो ठीक है, फटाफट बता दीजिए, वी आर गोइंग बियॉन्ड द टाइम। चलिए, ओके, सो ओके, सो मैन्युफैक्चरर लेवल पे रेड, रेड उतना तो दिखता नहीं है बट चलेगा, ठीक है, ठीक है। सो मैन्युफैक्चरर लेवल पे इन्होंने गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने बताया था कि देखो अब भी है, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे हमने तो काम कर लिया है बट मैन्युफैक्चर लेवल पे भी हमें काम करना पड़ेगा ताकि हमारी इंडिया में वो जो भी व्हीकल्स आ रहे हैं दैट विल बी हैविंग अ बेटर फ्यूल एफिशिएंसी, ओके, एंड अलोंग विद दैट फ्यूल एफिशिएंसी यहाँ पर मतलब माइलेज है, ठीक है, अगर मैं 1 लीटर पेट्रोल डाल रहे हैं तो so how much mileage how much kilometer I can ride it, right? So with come with lower fuel how much maximum output I can bring it, so that is the fuel efficiency they are talking about it here, clear till now? So okay, so this is what the thing is, ये पिन कलर मुझे बहुत परेशान कर रहा है, रुक जाइए, लेट मी फाइंड अ वे, रेड भी व्हाइट भी नहीं है क्या यहाँ पर, ठीक है, बच गई मैं, ओके, सो इंडिया में अभी ये चल रहा है, राइट, भैया पेन कलर को छोड़ दो, मैं व्हाइट ही यूज कर देती हूँ, ठीक है, थैंक यू फॉर योर लाइक रेस्पॉन्सेज एंड एवरीथिंग, अभी हम आ जाते हैं, ठीक है, सो चलिए, ओके, कमिंग बैक टू दिस, ठीक है, सो इंडिया का मेन एम्बिशन ये है फ्यूल एफिशिएंसी, ऑयल का वो परचेज है, राइट, द ऑयल इंपोर्ट को हमें थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, राइट, और इसके अलावा पोल्यूशन को भी हमें कम करना पड़ेगा और एफिशिएंसी बढ़ाना है, ठीक है, सो हमने देख लिया था क्यों हमें ये सब कुछ चीज करना है, क्योंकि इंडिया का इकोनॉमी को सिक्योर करना है, एनर्जी सिक्योरिटी है, और इसके अलावा वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द क्लीनर एनर्जी एज वी हैव प्रॉमिस्ड, सो दीज आर द थिंग्स व्हाई वी आर गोइंग फॉर दीज थिंग्स, ठीक है, सो समझ आया अभी तक, कोई भी दिक्कत तो नहीं है ना? So इंडिया का मेन फोकस ये है कार्बन एमिशन, दैट इज लाइक फ्रॉम by changing all these things what India is trying to bring is like from 113 gram per sorry CO2 per किलोमीटर से हमें इसको लेके आना है, ठीक है, 77 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पर किलोमीटर, सो ये चीज है ना, 113 ग्राम से हमें वो 77 ग्राम तक लेके आना है कार्बन डाइऑक्साइड को, so this is a major concern when it comes to the emission based और pollution based ambition इंडिया को ये है, this editorial is talking about, ठीक है, हमारे पास इतना अच्छा, ठीक है, इतना अच्छा ambitions तो है, इंडिया has a very way good ambitions, but what about the challenges, right? So it is not easy for India to go with it, there are multiple challenges that India is right now facing upon, ठीक है, one thing is about there is a lot of flexibility for those manufacturers who are going into it. First thing, India is actually pushing its manufacturers to go to those fuel efficiency, and ethanol blending is right now going on, but ethanol blending is not giving much better results, right? So ethanol blending पेट्रोल से इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल है ना,
सो वो पेट्रोल से एफिशिएंसी कम दे रहे हैं एंड इट इज मच कॉस्टलियर एज वेल, राइट। एंड अलोंग विद दैट द इशू देयर इज माइलेज बहुत कम दे रहे हैं, ठीक है। so if 1 liter of petrol is giving 50 kilometers for me, for example, ठीक है, and at the same time when I use the E20 fuel, okay, it will be giving, अभी भी कम आ रहा है बेटा, जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक अभी तो ठीक चल रहा है ना, चलिए। so the thing is about, okay, so um ठीक है, okay, no issues. I think the voice is audible right now, right? If there is any issue with the audio, please let me know if there is any issue with the audio. Okay, ठीक है जी। एथनॉल ब्लेंडिंग का जो भी वो इसका परफॉर्मेंस है बहुत कम है। सो इंडिया क्या चाह रहा है, इंडिया गवर्नमेंट है ना, उन लोगों ने एक थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दे दिया है, ताकि देर आर सर्टेन नंबर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटीज दैट हैव बीन गिवन, ठीक है। सो दिस एडिटोरियल इज टॉकिंग अबाउट दोस, ओके, this editorial is talking about those flexibilities that we are giving to those companies, ठीक है। मान लो अगर एक कंपनी ने, ठीक है, छोटा सा एक कार इन्होंने इन्वेंट किया है, ठीक है। फर्स्ट थिंग, इंडिया इज पुशिंग मैन्युफैक्चरर्स, इट इज नॉट कंप्लीट वो विलिंग ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है इंडिया में, ठीक है। इट इज बीन पुश्ड बाय हूम, द गवर्नमेंट, ठीक है। फर्स्ट थिंग यही पर है, ठीक है। द सेकेंड थिंग इज लाइक दे आर ईजिंग द सर्टेन नॉर्म्स फॉर द कॉर्पोरेट, सो दैट इमीडिएटली दे कैन नॉट कम इन टू इट, बट टाइम पीरियड है 3 साल तक इन लोगों को, देर आर टाइम पीरियड वेयर दे कैन गो फॉर फ्यूल एफिशिएंसी, वो मैकेनिज्म को लेने के लिए। सो द ट्रांसफॉर्मेशन इज फ्रॉम the internal combustion engines से, okay, the combustion engine से we are moving towards the EV vehicles and it will take time. So initially they are given, वो इंडिया का टारगेट है, राइट। सो जो इंडिया का टारगेट है ऑफ 113 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से 77 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को लेके आने के लिए, so that kind of mechanisms those corporates or those companies who are building it, right, so they will be having 3 years time. so अगर उन लोगों ने फर्स्ट ईयर पे उन्होंने इतना अच्छा सा परफॉर्म नहीं किया, इनके पास वो टेक्नोलॉजीज कम है, इनके पास वो छोटी छोटी चीज है ना, द इनपुट्स कम है, सो उसके लिए दे हैव गिवन द टाइम एंड 2-3 years व्हेन इट कम्स टू सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, इफ देयर परफॉर्मेंसेस आर गुड दे विल बी गिविंग अ बेटर क्रेडिट ऑल्सो, ठीक है। ये पहले याद रखना पड़ेगा। एंड द कंपनीज हु आर मूविंग टूवर्ड्स दिस काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, दे विल बी गिविंग मच easier banking facilities as well. So these are the some of the flexibilities, and apart from that, जो कंपनी इन्होंने बहुत कम प्रोडक्शन और बहुत छोटा सा प्रोडक्शन कर रहे हैं, इनका टारगेट नहीं मीट कर पा रहे हैं, जो कंपनी ने अपना टारगेट ऑलरेडी पूरी कर रखा है, उनसे इन लोगों ने क्रेडिट खरीद सकते हैं, ठीक है। द गवर्नमेंट क्रेडिट्स को इन लोगों ने ले सकते हैं, so that the smaller company who are not able to meet the target, they will be getting the financial support from the companies who have been attained those, ठीक है। so there will be this kind of flexibilities also. so keeping all those flexibilities, what we have to keep it in mind is, giving flexibility is fine, but what about the long term output of these things, okay? First thing is about, in case, okay, if we are giving all those things, राहुल ठीक है बेटा, अभी इन मिड ऑफ द थिंग आई कैन नॉट डू इट, आई विल टेक इट, ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए, सो इन दैट केस, ओके, in that case what we have to do is, India have to focus upon, it should not pressurize the corporates, it should be giving the flexibilities, but it should not be a long term or a way to flexibilities हमें देना नहीं है। now we have to focus upon cleaner energy, the reason being we have promised certain climate goals also, right, moving towards clean energy. इंडिया खुद के लिए पोल्यूशन को कम करना पड़ेगा, और इसके अलावा वी हैव टू फोकस अपॉन certain things where we will be
फोकसिंग अपॉन एनर्जी सिक्योरिटी एंड ऑल्सो द ऑयल डिपेंडेंस को कम करना पड़ेगा. सो दीज आर द थिंग्स दैट आर मेजरली नीडेड, सो विच वी हैव टॉक्ड अबाउट. ठीक है, नॉट ओनली इंडिया, ये वाला वो ईवी व्हीकल्स का ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह यूएस में भी हुआ था, चाइना में भी हुआ है. ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स. ऑयल को कंट्रोल करने के लिए इवन यूएस हैव डन दिस. ठीक है, in 1975 you are able to see, okay, introduced in the United States in 1975 after the 1973 Arab oil embargo. So हमें एक अच्छा सा पॉइंट हो जाएंगे जहां पर हमारी वो लाइक कंटिन्यूअस एनर्जी सप्लाई एंड दैट आल्सो विल बी ऑफ व्हाट. गणेश पढ़ाई में ध्यान दे दो भाई. ठीक है, सो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है कि we are going towards more of a sustainable and also long term energy which is going on. ठीक है, clear है. There is any other doubt till now? So यहाँ पर लोगों ने they are talking about under this framework manufacturers must meet both corporate average fuel consumption cafe, right, and also new energy vehicle which we have talked about. Combustion engine से we are moving towards electrical vehicles, right? So that is what we are talking about. Fuel efficiency compliance alone is insufficient. Companies that fail to earn enough NEV credits through EV or plug-in hybrid production must purchase credits from those with surplus EV production. जो मैंने बोला है. ठीक है, सो बड़े वाली जो जो कंपनीज है उन्होंने टारगेट को पूरी कर रखा है ना. सो उनसे हम क्या, छोटा वाला कंपनी जिसको टारगेट नहीं कंपाइल कर पा रहे हैं, उनसे इन लोगों ने क्रेडिट पॉइंट्स ले सकते हैं. दे कैन वर्क अपॉन द मैन्युफैक्चरिंग एंड थिंग्स. ठीक है, क्लियर टिल नाउ? इज देयर इज एनी डाउट? नो प्रॉब्लम, अगर आप लेट आए हैं तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, चलिए. द कॉस्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी वेयर वी हैव टॉक्ड अबाउट वो इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में भी, राइट. सो वहां पर एफिशिएंसी बहुत कम है, पेट्रोल से भी बहुत कम एफिशिएंसी, बट इट इज बीइंग मोर कॉस्टलियर देन पेट्रोल, राइट. सो ये कॉन्ट्राडिक्टरी ये है व्हेन वेयर वी आर ट्राइंग टू सिक्योर द ऑयल, राइट, एनर्जी सिक्योरिटी थ्रू रिड्यूसिंग द डिपेंडेंस ऑन ऑयल, बट अदर साइड हमारी एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए हम प्रपोज कर रहे हैं जहां पर इट इज वे कॉस्टलियर, right. So this is a what one of a contradictory. So the hurdles are being too many, flexibility should not be there, and the thing is like we have to focus more on like encouraging the manufacturers rather than pushing them into the new technologies. ठीक है, और resources को भी हमें खरीदना पड़ेगा for initial times because critical minerals व्हीकल्स वगैरह मैन्युफैक्चरर्स प्रोवाइड कर देंगे, बट चार्जिंग पोर्ट्स एंड ऑल्सो द अवेलेबिलिटी ऑफ चार्जिंग पोर्ट्स वगैरह इंडियन गवर्नमेंट के हाथ पे होना चाहिए, राइट. सो उसके लिए हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा. ठीक है, सो CNG taken together these mechanisms significantly alter the stringency of these regulations, which raises a fundamental question: what is the purpose of a regulation? So यहाँ पर they are talking about one particular thing, the alternatives. Another challenge ये है थ्रू द ट्रांसमिशन तब तक हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या है. ठीक है, द रेगुलेशन शुड शेप मार्केट्स rather देन सिंपली अकोमोडेट प्रिवेलिंग मार्केट प्रेफरेंसेस. सो यहाँ पर ये एक और बहुत अच्छा पॉइंट है, ये याद रख लेना. सो रेगुलेशन किस चीज के लिए काम करना पड़ेगा? सो रेगुलेशन शुड बी वर्किंग अपॉन, ओके, वो मार्केट को एक्सक्यूज मी, okay. So if you are able to see, okay, regulation should be shape the markets rather than simply accommodating prevailing markets. ठीक है, so yes जी, I'll come to that. ठीक है, so India's own experience with compressed natural gas illustrates the point.
once policy support aligned with the regulatory certainty, manufacturers rapidly introduce CNG variants. Regulation can create market as respond to them. So the problem here is एक बार regulation आया है तो so everybody will be rushing into it. Good morning Shivani Soni. So everybody will be rushing into it, okay, and they will be focusing upon what producing one particular type of कार्स. सो यहाँ पर ये भी चीज है, अगर मार्केट में जो भी रेगुलेशंस आ रहे हैं, इट शुड नॉट बी गिविंग द वन पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट, एंड ऑब्वियसली वो होता भी नहीं है, ठीक है. सो इट शुड बी लाइक डिफरेंट वेरिएंट्स में डिफरेंट लेवल्स ऑफ एमिशंस एंड डिफरेंट लेवल्स ऑफ दिस फ्यूल एफिशिएंसी विल बी कैरिड अपॉन, ठीक है. सो वो हमें याद रखना है, सो दैट द मोनोटोनस प्रोडक्ट्स विल नॉट बी कमिंग एंड देयर विल बी लार्ज वेरिएंट्स एज वेल, ठीक है. क्लियर टिल नाउ, देयर इज एनी डाउट? एंड इसके अलावा जब वो सीएनजी का इंट्रोडक्शन हुआ था, ठीक है, सो उस टाइम तो ऑटोस, ओके, कार्स, एवरीथिंग वाज कंप्लीटली फ्लडेड अप विद दिस नेचुरल गैस का ये एक ही टेक्नोलॉजी के थ्रू आया था, राइट. सो वो वाला फ्लडेड नहीं होना चाहिए, इंस्टेड वी हैव टू गो फॉर मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है. सो दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से हियर कि when there is a regulation it should shape the market, okay. So that is what the thing is. चलिए, सो यहाँ पर केफ नॉर्म्स एनर्जी सिक्योरिटी बेस्ड में होना चाहिए, ठीक है. एंड इसके अलावा इट शुड नॉट बी ओनली द टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है. वी शुड नॉट स्टॉप ओनली देयर ओनली, वी हैव टू मूव फर्दर एंड फर्दर इनटू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है. क्लियर टिल नाउ? चलिए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं. इट्स बीन ऑलरेडी आधा घंटा हमने इसमें ही दे दिया है. चलिए, द नेक्स्ट वन इज AI's नेक्स्ट टेस्ट रीचिंग इंडियंस इनफॉर्मल वुमेन वर्कर. सो एज आई हैव टोल्ड यू 2018 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक, ठीक है, CNG और आउट ऑफ अमाउंट, हाँ जी, CNG अभी भी तो चल रहा है. इट इज नॉट लाइक completely wiped out. It is still going on, but the thing is like the cost of natural gas that is also considerably high right now, ठीक है, वो वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट के बाद. चलिए, सो यहाँ पर हमें देख पा रहे हैं ना, राइट. ILO 2018 में एक रिपोर्ट दिया था जहां पर 82% ऑफ वर्किंग वुमेन इन इंडिया आर इन इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट. इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या है यहाँ पर? इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट मतलब ये है कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर वर्क है, रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर वर्क इज मेजरली टेकन केयर बाय whom? द विमेन एम्प्लॉयर्स, राइट. विमेन ओनली दे आर टेकिंग केयर ऑफ दोस. सो यहाँ पर एक चीज हमें नोट करना है, जो भी एग्रीकल्चर वर्क उसमें हो रहे हैं, इसमें मेजर ऑफ द परसेंटेज विल बी गोइंग टू whom? द पर्सन हु हैव ओन्ड दैट लैंड. टेक, मान लो मुझे मतलब I just imagine I got married, okay. My husband is working in the urban area and he has a land, and right now I'm doing all those agriculture work in his own, in our family land only. सो ना उसमें सैलरी आएंगे, ना उसमें रिकग्निशन नहीं है, रिकग्निशन इन द सेंस द गवर्नमेंट रिकग्निशन, ठीक है. और दूसरी चीज ये है इनफॉर्मल वर्कर, कहीं भी मैं मेंशन नहीं हूँ एज आई एम अ वर्कर. फॉर्मल वर्कर मेरे लिए सैलरी नहीं है, मेरे लिए वेजेस नहीं है, ये सब कुछ है, ठीक है. सो दैट इज व्हाट द थिंग इज लाइक केयर गिविंग, डोमेस्टिक वर्क्स, जैसे हाउस हेल्प के लिए लोग आते हैं ना, सो they are also coming under this informal workers only, okay. And apart from that there are multiple areas where this have been mentioned as informal workers. So women ka major part of employment is engaged in informal work only. So this editorial is talking about right now AI have been transformed many things in India when it comes to education, okay, healthcare, and there are so many areas, space, astronomy, okay. And iske alawa we are going for multiple things, okay. not only financial sector में भी ये एक बहुत ज़्यादा यूज होते जा रहे हैं, but the thing is like are we discuss of Tanya, I didn't get your message beta, can you please repeat it once? okay. so अभी इतने अच्छा जहाँ पर, ठीक है, एजुकेशन में, स्पेस में, कहीं कहीं एरिया पे इंडिया ने बहुत अच्छा सा काम किया है विथ AI, राइट. सो नाउ
क्या ये एआई यूज करके हमें इंडियन वुमेन जो स्पेशली दोस हु हैव एम्प्लॉयड इन दिस इनफॉर्मल वर्कर्स, इनको इनको भी इंक्लूसिविटी में लेके आने के लिए कुछ कर सकते हैं हम? इज देयर इज एनी वे? सो दैट इज व्हाट द एडिटोरियल इज टॉकिंग अबाउट एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, ठीक है। सो इंडिया का मेजर पर्पस ये है, ठीक है, एआई में कैसे ये यूज होते जाते हैं। वी आर लाइक गोइंग फॉर मेनी एरियाज वेयर द एग्रीकल्चर, पहले एग्रीकल्चर में हम इसको काम कर लेते हैं, ठीक है। अगर एआई आएंगे तो एआई एआई कैसे यूज हो सकते हैं? मान लो मैं एग्रीकल्चर कर रही हूँ, राइट। सो मुझे एक चीज जानना है, इसी प्रोडक्ट का, इसी क्रॉप का प्राइस क्या हो सकता है मार्केट में, ठीक है। सो उसके लिए आई कैन यूज लाइक फॉर मार्केट अवेयरनेस, प्राइस अवेयरनेस एंड द फर्टिलाइजर अवेयरनेस, इसके लिए मैं एआई यूज कर सकती हूँ, पहले चीज। और दूसरी चीज, क्रॉप की हेल्थ के बारे में मुझे पता होना चाहिए। एक कीड़ा आ रहा है, नहीं तो उसको लाइक वाइट स्पंजेस वो प्लांट क्रॉप के आ रहा है, और इनका लीव्स पेल येलो होते जा रहा है। सो ऑल दिस टू अंडरस्टैंड what is the problem with the crop, what it needed, what is the deficiency that it have, right? So crop health के बारे में मुझे जानने के लिए क्या यूज कर सकते हैं? एआई यूज कर सकते हैं, राइट। एंड इसके अलावा इसका कितना पानी चाहिए, एंड व्हाट इज द वेदर, राइट, वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी, बिकॉज इफ आई एम गोइंग फॉर सोइंग द सीड्स एंड उस टाइम उसी स्पेशली दैट सीड का, ओके, व्हाट इफ इट इज अ कैरिफ क्रॉप, मेजरली एग्रीकल्चर वर्क लोगों को पता है, बट स्टिल फॉर एन एग्जांपल आई एम टेलिंग यू, ठीक है। सो वेदर फोरकास्टिंग के लिए बारिश आएंगे कि नहीं है। सो अभी एल नीनो भी आ रहा है, राइट। सो एल नीनो में भी कौन सा कंडीशंस आई कैन लाइक दोस प्रोडक्ट्स दैट आई कैन यूज फॉर फार्मिंग एंड एवरीथिंग। सो ये वाला इंक्लूसिविटी और ये वाला मार्केट एक्सेस के लिए और अवेयरनेस के लिए ए आई कैन बी यूज्ड इन दोस पर्टिकुलर एरियाज, ठीक है। एग्जैक्टली, ड्रोन यूज किस चीज के लिए, इन एडवांस लेवल हम देख लेते हैं दीपक। सो ड्रोन किस चीज के लिए हम यूज कर सकते हैं? ऑलरेडी हमारी इंडिया में वी आर गोइंग फॉर दोस सर्वाइलेंस, राइट, ड्रोन वहां पर यूज करते हैं। सेम ड्रोन यूज करके हम फर्टिलाइजर्स भी स्प्रेड कर सकते हैं, ठीक है। और क्रॉप हेल्थ, वो इफ इट इज लाइक मैसिव एरिया, मान लो 2-3 एकड़ है, ठीक है। सो उसको हमें मैं देखना है, और फेंसिंग का कुछ भी है, तो आई कैन यूज द एआई टेक्नोलॉजी फॉर ड्रोन से यूज करके मुझे वो एरिया का मेजरमेंट भी मिल जाएंगे, और इसके अलावा फेंसिंग का आइडियाज भी मिल जाएंगे। सो दीज आर द थिंग्स वेयर वी कैन यूज एआई इन ग्रास रूट लेवल से एडवांस लेवल तक एआई यूज कर सकते हैं, ताकि इनफॉर्मल वर्कर्स ऑल्सो विल बी कमिंग अंडर दिस, ठीक है। मान लो डोमेस्टिक वर्कर है, एक केमिकल यूज करते जा रहे हैं इंडिया में, ठीक है। सो दैट इज इन्फेक्टिंग माई स्किन्स, ओके। सो तुरंत मैं क्या कर सकती हूँ, इसका फोटो निकाल के आई कैन आस्क द एआई, एटलीस्ट देखो ब्लेंडर्स होता है, इट इज नॉट लाइक दैट, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आई कैन यूज इट, राइट। सो वो क्लिक करके आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ डिसीज इट इज एंड वेयर माई स्किन इज वेरी सेंसिटिव टू दोज केमिकल्स, वो प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट्स को फोटो क्लिक करके कर सकते हैं। देन आई विल बी एबल टू नो हाउ बेटरली आई कैन यूज दोज केमिकल्स एज वेल, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स वेयर एआई कैन बी यूज्ड इन इनफॉर्मल सेक्टर, ताकि विमेन को इंक्लूसिविटी हम लेके आ सकते हैं, ठीक है। सो डिजिटल लिटरेसी भी इसमें आ जाएंगे, एंड इसके अलावा दे विल बी हैविंग द टूल्स एंड मैकेनिज्म्स अवेलेबिलिटी है। बट टॉकिंग अबाउट द जेंडर डिवाइड, इंडिया में जेंडर डिवाइड बहुत ज्यादा है, राइट। सो जेंडर डिवाइड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो men are using, be it rural, be it urban men, the AI tools and the digital technologies that is being used by men are larger in India when compared to women, ठीक है। सो ये जेंडर डिवाइड है, इसको भी हमें हटा सकते हैं। इवन बैंकिंग सेक्टर्स में जो जो स्कीम्स है, मुझे किस तरीका से लोन मिल जाएंगे, किस तरीका से मुझे फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल जाएंगे, ये भी हम, एंड व्हाट आर ऑल द प्रोसीजर्स, ठीक है, मैं जान सकती हूँ एआई के थ्रू। सो दिस काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी, डिजिटल इंक्लूसिविटी एंड जेंडर डिवाइड भी खत्म हो जाता है, ठीक है। सो दीज आर द मेजर थिंग्स दैट वी कैन यूज इट, एंड दैट इज व्हाट दे हैव टॉक्ड अबाउट हियर, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं चैलेंजेस पे। चैलेंजेस पे मेजरली पहले चीज क्या आता है, साइबर सिक्योरिटी, राइट। सो साइबर सिक्योरिटी में है, अगर मैं फोटो क्लिक कर रही हूँ और कुछ चीजें आ रहे हैं, मेरी डेटा प्राइवेसी में दिक्कत आ रहा है। और दूसरा डीप फेक्स, व्हेन इट कम्स टू विमेन स्पेशली, इंडिया में बहुत, आई एम सॉरी टू से दिस, बट इंडिया में बहुत इनसिक्योर फील होता है व्हेन इट कम्स टू
विमेन स्पेशली व्हेन फॉर ऑल दोस थिंग्स, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी के बारे में एंड विमेन सेफ्टी के बारे में, राइट। एंड इसके अलावा डिजिटल इंक्लूसिविटी में पहले चीज इसको लिटरेसी के साथ कैसे यूज करनी है वो वाला, राइट, अवेयरनेस एंड द नॉलेज, ये सारा चीज विल बी ए चैलेंज फॉर इंडिया, राइट। एंड अलोंग विद दैट इसका बेनिफिट्स क्या है, देर विल बी, ये इनफॉर्मल वर्क से भी उन लोगों ने बेटर अपॉर्चुनिटीज, बेटर आउटपुट लेके आ सकते हैं, दे विल बी कमिंग अंडर आफ्टर पॉइंट ऑफ सम टाइम, और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू और मेनी अदर एनजीओs के थ्रू व्हाट हैपन, this informal workers also can be registered with Indian government and they can get a wages and the fixed salary as well, ठीक है, क्लियर टिल नाउ। सो जहां पर एग्रीकल्चर है ना, वो हाउस होल्ड एग्रीकल्चर में वी कैन नॉट एक्सपेक्ट मच, बट मच इन गवर्नमेंट रिकॉग्निशन के लिए, बट वी कैन गो फॉर बेटर आउटपुट, हमारी एग्रीकल्चर में बेटर आउटपुट के लिए हम एआई को यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स दैट दे हैव टॉक्ड अबाउट हियर, ठीक है। सो गवर्नेंस प्रायोरिटीज, यहाँ पर दे हैव टॉक्ड अबाउट द things, okay, where digital divide should not be based upon gender gap, and one thing more, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में, और मैं बैंक में जा रही हूँ लाइक लोन लेने का, ये सब कुछ चीजें के लिए, वन चैलेंज वहां पर भी एक आ जाएंगे, अगर algorithm of AI have been based upon the historical events, जहाँ पर men are more provided with the loans and they are into the those, ठीक है। सो वहां पर बहुत ज्यादा इश्यूज आ जाता है, राइट, बिकॉज इफ इट इज द algorithm is based upon historical things where women are very less when it come to the loan taking and everything, so वहां पर on that basis the AI can give a biased answer so that we can miss out the loan opportunities as well. So discrimination based, okay, area locality wise, caste based, okay, the religion based or the gender based, so these kind of things, vulnerabilities are also there when we are using for AI for searching certain things. So historical basis में अगर उन लोगों ने दे रहे हैं तो then there will be a biasness as well. So वो AI का, मैम हिंदी करंट अफेयर्स भी होते हैं क्या बेटा, अभी वेरी सून वी विल बी ब्रिंगिंग द हिंदी करंट अफेयर्स, हिंदी डीएनए भी आ जाएंगे, आप टेंशन मत लो, ठीक है, कुछ दिनों के लिए इट इज अभी सिर्फ हिंदी, सॉरी इंग्लिश चल रहा है, बाद में हिंदी भी आ जाएंगे, आप टेंशन मत लो, ठीक है तानिया। चलिए, सो टिल देन इफ यू हैव एनी डाउट, मेरी हिंदी भी थोड़ा सा टूटी फूटी है, अगर टिल देन इफ यू आर नॉट एबल टू कंपाइल विथ माई हिंदी, प्लीज लेट मी नो, मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगी बेटर इंग्लिश में बोलने का, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पर वो ये वाला डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। सो वी हैव टू रेगुलाइज दैट एआई एल्गोरिथम आल्सो, सो दैट इंडिया में साइबर सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी और इसके अलावा विल बी हैविंग दिस अनबायस्ड एआई एल्गोरिथम्स एज वेल। सो जहां पर हमारी बजटिंग विल आल्सो बी ऑन जेंडर बेसिस, वेयर इक्विटी लेवल ऑफ responsive budgeting also will be going for it, ठीक है, क्लियर टिल नाउ। एंड ये चीज है, एक चीज हम याद रखना है, सो इनफॉर्मल वर्कर्स में जो भी लोग हैं थोड़ा सा पढ़ा लिखा कम होता है, राइट, सो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट ऑल द इनफॉर्मल वर्कर्स टू बी वेल read and graduates or something, right, sometimes they would have stopped the school till school, sorry, till education till schooling only, some people will even not went to the school also, there is some kind of criteria, so उनको easy करने के लिए क्या करना है, हमें bilingual, sorry, multilingual purposes देना है, so that different area people also will be inclusive when it comes to accessing the AI, ताकि हमेशा इंग्लिश में ही यूज करना है तो क्या मतलब है इसका टेक्नोलॉजी का, राइट, आई कैन नॉट यूज इट, एवरी पीपल कैन नॉट यूज इट, सो मल्टीलिंगुअल टेक्निकल सॉरी टेक्नोलॉजी आएंगे तो then every nook and corner of the people can ask their own doubts in their own lingual things, and the response will also be much better when it comes in the regional language or the prescribed languages for every individual. So that is what they are talking about it, ठीक है। AI literacy as public infrastructure, access to tools is a necessary but not sufficient condition for inclusion. So यहाँ पर inclusion के बारे में हम बात करेंगे तो AI tools रखने में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे ज्यादा हमें क्या करना पड़ेगा,
we have to focus on certain things where we are moving towards lot and lots of like inclusivity के लिए हम क्या करना पड़ेगा, language में हमें काम करना पड़ेगा, algorithm में हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है. So these are the things they have talking about. Training programs for women in informal work must be designed around their time constraints, literacy levels and livelihood context, embedding AI literacy within Deen Dayal Antyodaya Yojana, okay, National Rural Livelihood Mission, Upadhyay Gramin Kushalya Yojana, okay, and Skill India with linkages to Mission Shakti's Shaki network would allow trusted community infrastructure to carry new digital capacity. So for literacy, digital literacy and AI literacy, uske liye these are the norms there through which they are giving the training and the skill enhancement for informal workers, ठीक है, especially women. The measure of success should be outcome based. Did this help a women access an entitlement, navigate a platform or move to better paid work, ठीक है. सो डिजिटल सेफ्टी के बारे में भी हमने बात कर लिया, उसके बारे में है, ठीक है. सो हमारी आईटी रूल्स भी अमेंड हो गया है 2021. सो उसके बारे में भी उन्होंने लिख दिया है ताकि वो डीप फेक्सेस वगैरह नहीं होता जाता है, ठीक है. सो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू फोकस अपॉन एंड अलोंग विद दैट, ठीक है, बाशिनी ऐप है. ओके, सो बाशिनी इज बेसिकली मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म जहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेजेस विल बी लाइक ट्रांसलेट होते जाता है, ठीक है. एंड India has built substantial AI infrastructure in a short period, that is India AI Mission, the Bhasha and interface for India Bhashini multilingual platform, the AI governance of guidelines and targeted cross-sector partnerships. India AI Impact Summit 2026 showed that these ambitions are matched by a growing ecosystem of practitioners, innovators and civil society. So opportunity हमारे पास है. So only thing is we have to go with a better usage of it, ठीक है. So that is what they are talking about here. चलिए, अभी तक कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो मुझे बता देना. पहले चीज इंक्लूसिविटी आना चाहिए और इसका चैलेंजेस क्या क्या है, लिटरेसी को हमें देना है और साइबर सिक्योरिटी है, विमेन्स सेफ्टी है, ठीक है. एंड इसके अलावा देयर इज ठीक है. चलिए, अभी एंटी डिफेक्शन लॉ, चलो जिन लोगों ने पहले दिन से फॉलो कर रहे हैं, वी हैव डिस्कस्ड मेनी थिंग्स अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ. सो जो जो आपको पता है वो बता देना. आई वांटेड टू नो लाइक कि कितना आपको याद रह रहे हैं अभी अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ, ये तो मुझे बता देना. ओके प्राची, ओके अरविंद, थैंक यू सो मच, ठीक है. चलिए, एंटी डिफेक्शन लॉ किस चीज के लिए हम यूज करते हैं, जहां पर पार्लियामेंट में, ठीक है. सो देर आर 4 ways it have been used, it has been used in India, okay, especially in the parliament. So constitutional basis में 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है, ये ऐड किया है 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ, जहां पर डिफेक्शन इज चेंजिंग द पार्टी लाइक डिस्क्वालिफिकेशन बेसिकली, ठीक है. सो डिस्क्वालिफिकेशन शेड्यूल 10 में एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में कौन सा बेसिस में हो जाता है. पहले चीज, ओके, अगर मैं एक पार्टी में इलेक्टेड हूँ, ठीक है, राइट, ग्रेट गणेश, गुड. 1985 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एंड दैट इज कमिंग अंडर द 10th शेड्यूल, ठीक है. चलिए, और एक और अमेंडमेंट भी आए हैं, वो भी मुझे बता देना, ठीक है. सो पहले चीज, एंटी डिफेक्शन लॉ में पहले प्रोविजन क्या है, अगर इफ आई हैव लाइक if I have been, okay, elected through ABC party, okay, and after election I have been shifted to another party which is DEB party, okay. So within that thing 6 month time, ठीक है, उसके भी मैं आ जाऊंगी, ठीक है, don't worry Ganesh. So if I have shifted my party after getting elected, where I have been elected by people when I get into like
through an party, representing that party and representing my people, and I have gone through the elections and I have contested the election, contested an election, and I have been won also. Now I have been selected. So after that, if I'm shifting my party, so that is a injustice, right? So उसी basis में पहले disqualification हो जाएंगे change of party, ठीक है? एंड सेकेंड थिंग इज अबाउट, ओके, अगर मान लो मैं एक इंडिपेंडेंट मेंबर हूँ, ठीक है, आई डोंट हैव मच बिगर पार्टी मैन एंड कोई भी नहीं है मेरे पास, ठीक है, बट लेकिन एज ए इंडिविजुअल कंटेस्टेंट आई हैव स्टूड इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड आई हैव वन देयर, पीपल हैव बीन elected मी एंड आई गॉट वन सीट इन द बी इट लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा, ठीक है. सो वहां पर क्या हो जाता है, आई विल बिकम एन इंडिपेंडेंट मेंबर, बट आफ्टर बिकमिंग अ इंडिपेंडेंट मेंबर मैं किसी पार्टी को, मतलब एबीसी पार्टी, डीईबी पार्टी, XYZ पार्टी, तो कहीं पर भी मैं ज्वाइन हो जाता तो मेरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का वो ये चीज डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, ठीक है. सो आई विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म एनी मोर लाइक फर्दर इन द पार्लियामेंट, राइट. सो वहां पर भी मैं डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अगर इफ आई एम इंडिपेंडेंट member, right. And third one is about, okay, if I am being a nominated member by president, Rajya Sabha mein 12 members, we know they will be nominated by the president, right, out of their excellence of work or any other चीज, literacy में, sports में, ठीक है, if they social wellness में, welfare में, ये सारा चीज में इन लोगों ने अगर involve किया गया हो तो if they have performed very well in that case, so वहां पर उन लोगों ने क्या करेंगे, प्रेसिडेंट ने 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करेंगे. सो वन अमंग दैट, इफ आई एम वन अमंग दैट 12 नॉमिनेटेड मेंबर एंड इफ आई हैव जॉइंड एनी ऑफ द पार्टी, ओके, एक प्रोविजन यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये नॉमिनेटेड मेंबर है ना, सो दे कैन जॉइन एनी ऑफ द पार्टी विद इन 6 months ऑफ देयर like which they have been selected है ना. so 6 months टाइम के बीच में ही आई हैव टू सेलेक्ट वन, आई कैन जॉइन वन पार्टी, ठीक है. अगर मैं उसी में नहीं है, 6 महीने के बाद में ज्वाइन कर रहा है तो देन आई विल बी डिस्क्वालिफाइड. ये 6 महीना का टाइम है, ठीक है. एंड दूसरी चीज है, वेदर इफ आई एम, ओके, इन केस मेरी पार्टी ने, ओके, मान लो एक पार्टी में एक मैं मेंबर हूँ, आई हैव गॉट इलेक्टेड एंड मेरी पार्टी ने बताया था कि एक बिल आने वाले हैं, ठीक है, उसके लिए पॉजिटिव साइड पे आपने वोट कर लेना. लेकिन मुझे आउट ऑफ माय ओन इंटरेस्ट में उनके कहने के, विप के कहने के ऑपोजिट डायरेक्शन में मैंने हाथ नहीं उठाया, ठीक है, आई डिडंट वोट फॉर दैट बिल, then also I will be disqualified because you're going against the party, ठीक है. So that is one of the thing where I will be getting disqualified as well. Correct? Clear? So these are the basis of 10th schedule where we will be getting anti-defection law, right? So recently टीमल से भी वो लोग गए हैं, right? And also there are Raghav Chadha also have shifted his party, right? तो वहां पर एक छोटा सा लूप होल था वो मर्जर का, right? So मर्जर अभी आया है, इसके पहले एक चीज था स्प्लिट, ठीक है, जहां पर अगर वो एक पार्टी से 1/3 ऑफ द, पहले इसको मैं इरेज कर देती हूँ, आई एक्सप्लेन द स्प्लिट, देन आई कमिंग बैक टू दिस मर्जर, ठीक है. स्प्लिट के बारे में हम बात करेंगे. सो लूप होल यही था जो मैंने बोला था, स्प्लिट, जहां पर वो वेयर the 1/3 of the party men or party members, okay, if they withdraw from this party and they are going with another party, yes, Raghav Chadha, ठीक है. So then there is no disqualification will be given क्योंकि it have been justified that if there is any party that is going with like different ideologies, okay, if they are not willing, the party members are not willing to continue with it, then 1/3 of the people can go and split and they can join any other party, then that will not be considered as a grounds for disqualification, ठीक है. so this is one thing, but इसको क्या किया गया था, बहुत लूप होल आ गया, मतलब it is very easy for everybody to change their party because 1/3 only is needed, right? सो क्या हो गया, उनको उन्होंने 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इनको हटा दिया है ताकि
this split is no more valid. So instead we have gone for the merger, where the higher number have been given, 2/3 of the party members have to be, okay, 2/3 of the party members have to be shifted to other party, then only it will be considered as like not a defection, not a disqualification. So only when the 2/3 of the party members are shifted to other thing. इसमें भी एक चीज है, याद रख लेना, ठीक है, it is not only 2/3 of the party members alone can know. पहले head of the party should merge with, merger है तो head of the party should be merging with another party, okay, and also the second thing is about 2/3 of members also should be going on with it. So these two conditions have to be satisfied, then only it will be considered as merger, where the disqualification will not, where the disqualification will be exempted, वहाँ जहाँ पर ये disqualification के बार मतलब it will not be considered as a disqualification when merger happened. First thing, when the head of the party is shifting with, merging with other party, and 2/3 of the member are being shifted to another party, ठीक है. बट सुप्रीम कोर्ट में ये क्वेश्चन आया है, एंटी डिफेक्शन लॉ को बहुत ज्यादा लोगों ने इजीली यूज नहीं कर रहे हैं क्या, ये चीज आया है. सो वहां पर हमें क्या पता चल रहा है, द मेजर इशू हियर इज अबाउट, ठीक है, one thing, okay, exemptions should be there but it should not be a very easily loophole, ठीक है. सो सुप्रीम कोर्ट में यही अभी बात ही चल रहा है. लेट्स वेट व्हाट, अभी इसको ठीक करने के लिए सेंटर को सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन भी दे दिया है टू रिड्यूस द लाइक यूसेज ऑफ दिस. हाँ जी बताइए पीसीएम. सो यहाँ पर हमें रखना पड़ेगा, ठीक है. सो दिस इज व्हाट द थिंग इज फ्रॉम, ओके. सो ठीक है, इसके अलावा भी देर आर सर्टेन थिंग्स, ठीक है, जहां पर डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएंगे, राइट. सो अगर डिस्क्वालिफिकेशन, हाँ पहले चीज ये है, डिस्क्वालिफिकेशन कैसे बोलते जाते हैं, हु इज going to announce it as a disqualification? Obviously it is a speaker in Lok Sabha and the chairman in the Rajya Sabha, right. अगर speaker have told that this particular people have been shifted, okay, रूलिंग पार्टी से उन लोगों ने दूसरी जगह पर जाएंगे, तो it is under his discretionary, जहाँ पर it can be taken as a disqualification also, otherwise it can be taken into different ways also, ठीक है. कोई बात नहीं, पीसीएम चलेगा, कभी कभी लेट होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है. सो द थिंग इज दैट, बट एक और स्पेशल प्रोविजन है जहां पर स्पीकर कैन शिफ्ट देयर पार्टी, क्योंकि स्पीकर मोस्टली फ्रॉम द रूलिंग पार्टी ओनली. देयर विल बी इलेक्शन, both the opposition party also will be voting for the person and also the ruling party also will be voting for the person to be seated in the seated as a speaker, right. So अगर स्पीकर ने स्पीकर ने सोचा कि मुझे ये पार्टी से नहीं हो रहा है, मैं ऑपोजिट पार्टी में जा रहा हूँ, देन इट इज ओके एंड इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ डिस्क्वालिफिकेशन ऑल्सो. सो ये भी आप याद रख लेना, ठीक है. सो अपार्ट फ्रॉम दिस 10th शेड्यूल देर आर सर्टेन थिंग्स जहाँ पर पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट ऑफ 1951 में भी इट हैव बीन मेंशन, जो जिसने क्राइम किया है और 2 years के ऊपर भी उन लोगों को इम्प्रिजन्ड का ऑफेंस इन्होंने किया है, so they cannot be, they will be disqualified from the parliament and they will be considered 2 years. और इसके अलावा जेल से बाहर आने के बाद भी 6 साल they cannot परफॉर्म इन पार्लियामेंट, ठीक है, ये पहले चीज है. और दूसरा, अगर इन्होंने एक्स्ट्रा ऑफिस रख दिया है, एक एक्स्ट्रा इनकम भी आ रहा है इसके अलावा भी, तो दैट आल्सो विल बी कमिंग अंडर डिस्क्वालिफिकेशन ओनली, ठीक है. Clear till now? This is what we have to know from this. Just read about it, what Supreme Court have said to center. Otherwise, the basic is about this only, ठीक है, ये याद रख लेना. चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, द लास्ट वन, जहाँ पर टू फिक्स अनएम्प्लॉयमेंट, फिक्स द इकोनॉमी फर्स्ट. सो यहाँ पर दे हैव टॉक्ड अबाउट सर्टेन थिंग्स. इंडिया में एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, राइट. एम्प्लॉयमेंट में बहुत बहुत ज़्यादा है कि इट इज़ लाइक ऑलमोस्ट 80% ऑफ द पॉपुलेशन, लाइक 52, मतलब 50% के ऊपर ही लोगों ने क्या है, एम्प्लॉयड नहीं है, दे आर बीइंग अनएम्प्लॉयड. इसमें बहुत ज़्यादा ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है. सो दिस इज व्हाट द मेजर थिंग दैट इंडिया इज गोइंग ऑन राइट नाउ एंड इट इज अ वेरी सीरियस इशू दैट हैव टू बी addressed here as well, right. So these are the things that we are going to see.
सो इन क्रक्स अगर हम इसको देख रहे हैं तो पहले चीज ये है कि ओके इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है, और जीडीपी भी इंडिया का अच्छा से चल रहा है, राइट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट। सो इंडिया में जीडीपी भी अच्छा चल रहा है, बट कंपेयरिंग दीज टू एम्प्लॉयमेंट कहाँ, राइट, एम्प्लॉयमेंट बहुत मिनिमल बेसिस में लिख रहे हैं, मतलब इट इज बीइंग वेरी मिनिमल एरिया वेयर द एम्प्लॉयमेंट इज बीइंग प्रोडक्टिव, ठीक है। या तो लोग मोस्टली इनफॉर्मल वर्कर्स में एम्प्लॉयड है, नहीं तो बहुत कम सैलरीज में, नहीं तो उन लोगों ने दे आर लाइक मोर ऑफ अनएम्प्लॉयड ओनली, ठीक है। सो द रिलेशन विथ जीडीपी ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट इज बीइंग like one contradictory matter where we have to focus upon. India should be giving, okay, India should be giving the thing। हाँ जी, हाँ जी दीपक, उसमें भी हम आ जाते हैं, उसका भी चीज है, ठीक है। सो ठीक है, सो हमें क्या करना है, जॉब क्रिएशन शुड बी feasible and it should be correlating with our GDP growth as well. Growth will be true and reliable growth and it will be long term growth once your employment is also stable, ठीक है। सो इंडिया में जीडीपी ग्रोथ होते जा रहे हैं बट वेरी फ्यू पीपल आर वर्किंग, एंड इफ इट इज बीन the growth is driven by those few people only and major of the people are being unemployed, that is a major concern we have to address, ठीक है। unemployment, I'm understanding your point very well, thank you, okay जी, ठीक है। so these are the things, so comparing to China, इंडिया और चाइना के पॉपुलेशन ऑलमोस्ट बराबर है, इवन इंडिया हैव एक्सीडेड चाइनीज पॉपुलेशन आल्सो इन पेपर्स, ठीक है। सो चाइना में अगर हम देखेंगे तो हाउ चाइना इज वर्किंग विथ, पहले चीज ये है, चाइना इज डूइंग इनका जीडीपी भी बेटर है, ठीक है, पॉपुलेशन भी है, हेवी पॉपुलेशन है, बट स्टिल एम्प्लॉयमेंट वहां पर बहुत अच्छा है। सो द एम्प्लॉयमेंट सेंट्रिक पॉलिसीज आर बेटर इन चाइना, so that is one of a lesson that India should learn from China, where the employment first policies or the employment centric policy should be bring it over here। एक चैलेंज ये है कि एआई का अभी आया है, एआई से हमें प्रोडक्टिविटी ज्यादा मिल रहा है, वी आर गेटिंग सो मच ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड वी आर गेटिंग, टेल मी वंस मोर मैम, क्या बताना है चाइना का, चाइना में है ना, वो जीडीपी भी इनका अच्छा है, बहुत अच्छा सा जीडीपी चल रहा है, दे हैव इक्विवेलेंट पॉपुलेशन आल्सो, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू देयर एम्प्लॉयमेंट रेट इट इज मच बेटर, ठीक है। सो दे हैव, okay, they have much better employment opportunities and their policies are okay, even though we criticize n number of things about like being autocrat or being dictatorship when it comes to the Chinese government and everything, it is not democratic, everything, n number of things are going on, but still the employment is much better and they are growing and growing, ठीक है, be it economical wise, be it technological wise, ठीक है, be it their employment wise, everywhere they are doing in a better way, ठीक है। सो उसका मेजर चीज ये है एम्प्लॉयमेंट सेंट्रिक पॉलिसी, सो इंडिया शुड लर्न फ्रॉम चाइना दैट एम्प्लॉयमेंट सेंट्रिक पॉलिसी शुड बी गोइंग विद अप, ठीक है। सो कमिंग बैक टू द एआई, राइट नाउ AI is like been many areas where India is been ओके, थैंक यू भूषण, ठीक है। सो इंडिया में एक चीज है कि एआई आया है, मेजर ऑफ द इंडिया सेक्टर विच इज ब्लूमिंग इज आईटी सेक्टर, राइट। सो आईटी सेक्टर में अगर हम देखेंगे तो देर इज एन नंबर ऑफ ले ऑफ्स, एन नंबर ऑफ फायरिंग अप फ्रॉम द things, right, from the jobs, right, so this is a major concern that we have to address here। so one is one of the major thing that we have to focus here is about, ठीक है, AI can come, productivity increase होना चाहिए, but that should not be replacing human employment, okay, we have to go for skill enhanced policies and also the market based learnings also should be given। so it is about unemployment को पहले ठीक करने के लिए what we have to do, we have to go for fix the economy as well, ठीक है। सो इकोनॉमी के लिए फिक्स करने के लिए क्या करना है, हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ताकि एम्प्लॉयमेंट्स आ जाएंगे, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स और मेनी अदर टेक्नोलॉजीज आर एरोसिंग, सो उसको हमें यूज करने में, सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू परफॉर्म, इंडिया शुड बी परफॉर्मिंग ऑन दैट काइंड ऑफ अ टाइम वेयर
it will be helpful for India to adapt those technology, and that will be giving out the output of employment opportunities as well. So manufacturing sector को हमें strengthen करना पड़ेगा, और इसके अलावा by gathering the technology we have to introduce more and more technology so that economy will be stable, economy will be having a stable job opportunities. And AI is not able all person, या AI सबके लिए नहीं हो पाएंगे, बट वी हैव टू स्किल एनहांसमेंट तो करना ही पड़ेगा ना, राइट? ह्यूमन टच वी कैन नॉट एलिमिनेट, बट AI बीइंग प्रोमिनेंट अभी, सो बेसिक AI को भी हमें यूज करने के लिए थोड़ा सा जानना चाहिए, ठीक है? सो ये सारा चीज है जहां पर वी हैव टू फोकस अपॉन ऑल दीज थिंग्स, ठीक है? दिस इज द क्रक्स ऑफ इट। इंडिया अभी क्या करना है, विकसित भारत 2047 को अटेंड करने के लिए वी हैव टू मेक श्योर कि हमारी स्टेबल जॉब्स होना चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट रेट कम होने के लिए वी हैव टू ब्रिंग मच क्लीनर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, जहाँ पर हमारी MSME फ्रैगमेंटेड है उसको हम गैदर कर सकते हैं एंड एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं, एंड those products should be made up of cleaner energy and should not be happened with this forced labor and everything, because US में अभी हमें पता है ना, there are forced labor के बारे में भी एक editorial है, but I didn't bring it because it is a repetition only, ठीक है? So US में ये भी बोला गया था, like forced labor से जो भी लोग लेके आ रहे हैं products को, we are imposing heavy tariffs and we are not majorly encouraging those products in our country, right? So same wise in like along with US, so India also have been announced that if there is any import India is doing, those products have been made upon, okay, those forced labor, we are not encouraging those exports to India, okay? So that is what India stands alone. So right now, so these are one of the things. So along with that, what we can be doing, we have to fix our economy by strengthening it, self resilient होना चाहिए, टेक्नोलॉजीज हमारे पास, स्किल एनहांसमेंट भी होना चाहिए, ताकि wherever we go we will be having stable opportunities, and because of that we will be getting stable job. So एक बार इकोनॉमी फिक्स हो जाएंगे, फिर दोबारा बार हमारी एम्प्लॉयमेंट भी फिक्स हो जाएंगे, दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग ऑफ, ठीक है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी एक चीज है कि जहाँ पर एवरीबडी कैन ओपन द कंपनी, ठीक है? कैन एनीबडी कैन ओपन द कंपनी, रजिस्ट्रेशन बहुत ईजी है, ठीक है? और इसके अलावा उसमें वो बैंकिंग फैसिलिटीज बहुत ईजी है, एंड अलॉन्ग विद दैट द थिंग्स दैट वी हैव टू फोकस हियर इज, कभी भी आ जाएंगे, कभी भी काम कर सकते, कभी भी आप इसको विथड्रॉ करके भी जा सकते। सो ईज ऑफ डूइंग को, इसका वो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, थोड़ा सा हमें कम करना पड़ेगा, जहाँ पर ईज ऑफ डूइंग के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग भी होना चाहिए, लिवलीहुड भी होना चाहिए, जहाँ पर whenever there is a company open or whenever the company is closed, that should not be affecting a people's life, livelihood में affect नहीं होना चाहिए. That is what they have talked about it. Please do read about it. Major thing is like India की policies होना चाहिए, but we have not used AI, मैम. PCM आपने AI को क्यों नहीं यूज किया? चैट जीपीटी, ए नंबर ऑफ थिंग्स, वीडियोस हम यूट्यूब में देख रहे हैं, इंस्टाग्राम में देख रहे हैं, मेजर इज मेड अप ऑफ AI nowadays, ठीक है? इज नॉट एबल ऑफ how will we be successful, how will we be successful? And all personal not dependent AI in everything. Yes, obviously not every person is dependent, but somewhere or the other indirectly there will be a touch of AI right now, ठीक है? सक्सेस कितना पढ़ना, ठीक है? See, PCM success is one thing, it is kind of a like another stop in your destination, ठीक है? destination तो चलते रहना चाहिए, and success is where you will be like clearing your exams, you will be getting into the services and everything. That is clearing the exam one point of success, ठीक है? but the destination is continuous service that you are giving to the nation. So जहाँ पर depends upon how many hours you have to study, how many hours you have to work, that is depend upon your efficiency. मान लो अगर मुझे एक चैप्टर पढ़ने में 2 घंटे लग रहे हैं और दूसरे बच्चों को एक चैप्टर पढ़ने में 3.5 घंटे लग रहे हैं, तो द थिंग इज अबाउट उस हिसाब से तो होना चाहिए, बट द थिंग इज लाइक core thing that we have to focus here is we have to focus upon the quality, whether मैं 2 घंटे पढ़ रही हूँ, उन्होंने 3.5 घंटे पढ़ रहे हैं, दोनों उसको एग्जाम टाइम पे रिटेन कर पा रहे हैं कि नहीं है, रिकॉल कर पा रहे हैं नहीं है, दैट इज द मैटर, ठीक है? सो सक्सेस इज अ लाइक कंटिन्यूअस जर्नी, जहाँ पर जहाँ पे वो रुकते नहीं है,
दूसरा दूसरा अचीवमेंट्स के लिए, गोल्स के लिए आते जाते हैं, सो दैट वी हैव टू, सो बीइंग कंसिस्टेंट इज द मेजर थिंग, ठीक है। टॉप इन, ठीक है जी। आई हैव नॉट ट्राइड इट मैम, एक बार ट्राई तो कर लो, मतलब जितने पढ़ लो। द थिंग इज लाइक ओनली यू हैव टू कीप दैट इन माइंड, जो आप पढ़ रहे हैं एक बार पढ़ लो, दो बार पढ़ लो, बट एग्जाम टाइम में आपको रिटेन करना पड़ेगा। सो टू चेक दैट, एग्जाम टाइम तक रुकना नहीं है। अभी आप वो आज पढ़ के कल भी उसी टॉपिक्स में टेस्ट भी दे सकते हो, ताकि बी एबल टू नो दैट, ठीक है। चलिए, सो दैट्स इट फॉर द डे। इन केस ऑफ एनी डाउट, इफ यू हैव एनी क्वेरीज, प्लीज लेट मी नो। ये शाम को आपके पास पीडीएफ आ जाएंगे, ओके। यू वुड बी एबल टू रिकॉल इट, जस्ट रिवाइज इट विद दोस नोट्स। उसी तरीका से मैं नोट बना के दे दूंगी। इफ यू हैव एनी अदर डाउट्स रिगार्डिंग द क्लास, प्लीज लेट मी नो, अदरवाइज वी विल वाइंड अप द सेशन, ठीक है। कितने घंटे पढ़ते हैं सब लोग? मुझे आता है, लेकिन हम क्लास करते हैं, ठीक है। मेरी हिंदी भी इतना अच्छा नहीं है, सो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ा सा ज़्यादा इंग्लिश रख देती हूँ, ताकि मेरी फ्लुएंसी टूटता नहीं है, और इसके अलावा आप लोगों को भी समझ आता है, ठीक है। कोशिश कर लूँगी इंग्लिश में रखने के लिए, ओके। आई थिंक आई एम मच बेटर देन अर्लियर, राइट? मेरे हिंदी, मतलब आई यूज टू barely use the Hindi words, but now I'm doing it, ठीक है। ठीक है, 11 hours, 3 to 4 hours, good, 8 hours, yes. So आपकी क्लासेस के अलावा भी if you are going for 11 hours, that is well and good. 8 hours 7 hours are ये genuine है, and continuously 8 hours 7 hours आप एक दिन के लिए रखेंगे तो that is very good thing, ठीक है। You would be able to do it. It's okay, you're doing it. Okay, thank you Lina, thank you. कंपनी, कंपनी इज बेटा, कंपनी डिफाइन प्लीज, मतलब किस चीज के बारे में? आई एम नॉट गेटिंग यू एग्जैक्टली, जल्दी बता देना। वेयर विल आई गेट द पीडीएफ? तानिया बेटा, यू हैव टू स्कैन दिस क्यूआर कोड, ठीक है। अगर ये टेलीग्राम चैनल पे हो जाएंगे, ठीक है। सो ये क्यूआर कोड स्कैन कर लेना, यू विल गेट द पीडीएफ देयर इन द इवनिंग, ठीक है। वेयर विल आई गेट द पीडीएफ? ओके, बहुत पढ़ना पड़ता है मैम। यस, यू हैव टू रीड, यू हैव टू रीड इट। सो वो रीड करने में रुकना नहीं है, उसको टेस्ट भी करना है पीवाईक्यूज के साथ साथ, ठीक है। चलिए, okay then, we will meet in the next session. Till then, please take care of your health and please do read the newspapers. Newspapers के अलावा पीआईबी भी पढ़ लेना, ठीक है। अभी क्योंकि कल ऐसे आया था कि हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंडिया का एक और जगह, ठीक है, इट हैव बीन सारनाथ, आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट हैव आल्सो हैव बीन एडेड। वो पीआईबी में मेंशन्ड है, प्लीज डू रीड अबाउट इट। एंड पीआईबी is must, PRS if you can go for it, ठीक है। And also one thing you have to make sure कि you're reading, okay, you're practicing the question and also you're writing the answers as well, ठीक है। चलिए, okay, we will see in the next session. Till then, take care. Thank you so much, thank you so much for joining, ठीक है।